ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਸ ਨੂੰ 3 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਟ ਆਫ mn ਨੰਬਰਸ Numbers may be reals or imaginary or functions arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns is called an m cross n matrix or matrix of order m by n। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਆਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤਾਂ ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਮ ਕ੍ਰਾਸ ਐਨ। ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਈਆਂ 2 ਰੋਜ਼, ਰੋ 1 ਰੋ 2, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕਾਲਮਸ ਹਨ C1 C2 C3 C4। So number of rows into number of column. The functions occurring in the rectangular array called the elements of the matrix. So दो गल्लां होईयां। Suppose करो भी मैं इदा नंबर रखते जां फंक्शन रखते x square x cube 2 3 4। So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਰੋ R1 R2। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C1 C2 C। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 2 into 3। ਸੋ ਤੇ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 2 into 3 6 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟਰਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ A is equal to AI, ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ I ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ J ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ AI ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਫॉर एग्जांपल ਲੈ ਲੈਂਦੇ 1 2 3 4 5 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 1 2 3, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 3, ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 2 3 4 5 5 ਕਾਲਮ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ। Next is row matrix. If m is equal to 1, a matrix m only one row ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ 1 into 6। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ 1 2 3 4 ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰੋ ਆ ਤਾਂ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਕੁਏਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ 0 ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਈ 1 by 1 ਤਾਂ 0 ਆ ਹੋ ਗਈ 2 by 2। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ 0 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 0 ਜਾਂ ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਠਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
देखो जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर नाल कोई लेना देना नहीं, जीरो मैट्रिक्स तो सारिया एंट्रीज जीरो, ये तो डिपेंड करूगा भी तुम किस मैट्रिक्स के कंटैक्स्ट के जीरो मैट्रिक्स में यूज कर रहे हो। सो यदि थोड़ी होर डिस्कशन कर लेने, सपोज करो एक मैट्रिक्स हैगी है तुहानू हुण इदां दे क्वेश्चन पुट कर सकता भी कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, वो कहेगा 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो वेयर AIJ इज इक्वल टू I² माइनस J², है ना। सो सानू 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने क्या सीगा, सो किदां दे एलीमेंट होंगे, इदां लिखने होंगे A1 2 A21 A22। सो जिहड़े बेस दे विच पए हुंदे ना सबस्क्रिप्ट कीते होए आ, ये इन्हां दी लोकेशन ही हुंदी है। सो कई बार एग्जामिनर दो तरह नाल क्वेश्चन पुट करता है, एक तो हो गया भी कंस्ट्रक्ट करो, तो यह मतलब तुसीं A11 A12 21 A22 फाइंड आउट करने हैं। सो किद्दां फाइंड आउट करांगे, सो ये A11 ये फिल करी चलो बस 1² माइनस 1² 0, वट विल बी A21 21 होएगा 2² माइनस 1² 4 माइनस 1 3, एंड वट अबाउट A12 1² माइनस 2² 1 माइनस 4 माइनस 3 ते 2 2 आई थिंक 0, 2² माइनस 2² 4 इक्वल टू 0। सो की बन गई मैट्रिक्स है 0 3 माइनस 3 एंड अगेन 0। सो इदां दा क्वेश्चन तुहाडे कोलों कई बार पुट कर लैंदा। सो एक होर पुट कर लैंदा, वो तुहानूं इदां कहेगा कोई मैट्रिक्स दे देगा, बड़ी सारी दे दूगा, सपोज करो आ देती। सो इसका ऑर्डर पूछ लेगा कि ना जी। सो ऑर्डर दियाँ 3 रोज ने 5 कॉलम ने, एक क्वेश्चन ये हो गया भी ऑर्डर दसो भी इसका ऑर्डर की है, 10 का ऑर्डर की है। फिर पूछेगा टोटल एलीमेंट किन्ने 5 × 3 15। होर तुहानूं की पूछ सकता, किसी एलीमेंट की लोकेशन पूछ सकता, तुहानूं कहूगा तुसीं दसो जी 3/4 एलीमेंट किहड़ा है। सो तुसीं पहला तीसरी रो दे विच जाना, तीसरी रो दे विच आ गई तीसरी रो ते 4th एलीमेंट कित्थे पिया आ पिया। सो तुसीं दस देना जी करो दिस, ठीक है जी। सो ये एक टाइप होगी। उस तो बाद चलो जो जिवें क्वेश्चन आई जाएंगे डिस्कस करांगे। तो हुण असीं स्केयर मैट्रिक्स नूं थोड़ा जिहा डिस्कस करते हैं। सो स्केयर मैट्रिक्स दे विच सब तो पहलां तां वो गल करदा डायगोनल मैट्रिक्स दी, है ना। स्केयर मैट्रिक्स किदां दियां होणगीਆਂ, फिर स्केयर मैट्रिक्स होणगीਆਂ, पहलां स्केयर मैट्रिक्स नूं डिस्कस कर लईए, सॉरी डायगोनल नूं कर लईए। स्केयर मैट्रिक्स, पहला स्केयर मैट्रिक्स देख लो, this is 1 1 2 3 4, this is square matrix order 2x2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 3x3 देखो इको जिहा साइज है ना। सो स्केयर मैट्रिक्स। सो उस तो बाद आ जाती है गल डायगोनल की। डायगोनल की हुंदा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इदा होर मैट्रिक्स। यदा ऑर्डर कितना सी 2x2, यदा ऑर्डर कितना सीगा 3x3। एक होर ले लो 0 0 0 1 2 3 4 1 1 2 3 4 7 8 9 0, सपोज करो इदा। सो जिहड़ा तुहाडा दिस इज द प्रिंसीपल डायगोनल, दिस इज द प्रिंसीपल डायगोनल, ठीक है। सो इन्हां दी एस इहदी लोकेशन की है, एस मैट्रिक्स दे विच डायगोनल एलीमेंट किहड़े 1 4, इहदे विच किहड़े है 1 5 9, इहदे विच किहड़े 0 3 3 0। हुण इहदे विच आ वाली एस एलीमेंट दी लोकेशन की है A11, इहदी की है A22, इहदे च की है A11, 5 दी लोकेशन की है A22, मतलब आ रहा A22, ते 9 दी की है A33। सो अगर किसी भी कुछ अगर तुहानूं मैट्रिक्स AIJ दित्ती हुई है, तो जे तुहानूं पुछदा है डायगोनल एलीमेंट्स किहड़े होणगे, तो उहदे विच होणगे A11 A22 A3 सो ऑन। सपोज करो इहदा ऑर्डर n/n है, सो कित्थों तक चले जाएगा ANN। सो जिहड़ा तुहाडा ये प्रिंसीपल डायगोनल हो गया, इह कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी। किसी भी मैट्रिक्स के प्रिंसीपल डायगोनल होगा ना। वैसे 3 डायगोनल होंगे ये, एक प्रिंसीपल डायगोनल, एक सुपर डायगोनल ते एक सब डायगोनल। जस्ट अ मोमेंट आप वो भी देख लेने। जस्ट हाँ जी,
जिवें मैं तुहानूं पहलां दस्सिया भी किसी भी मैट्रिक्स, सपोज करो मैं एक मैट्रिक्स लिखदा 1 2 3 0 1 7 8 0 0 2 3 4 0 0 2 1. So think about a matrix. This is matrix of order 4 by 4. So इहदा प्रिंसिपल डायगोनल किहड़ा हो गया? This is प्रिंसिपल डायगोनल. इहदे उपर ही पिया बिल्कुल, इहनूं बोलदे आ सुपर डायगोनल. ते इहदे एक नीचे पिया this one. So इहनूं की बोलदे आ किहड़ा मैट्रिक्स? इह साडा सी प्रिंसिपल डायगोनल. सो आह वाला किहड़ा सीगा? सुपर डायगोनल. सुपर डायगोनल ते जिहड़ा बिल्कुल प्रिंसिपल डायगोनल दे नीचे सीगा वो किहड़ा सीगा? सब डायगोनल. वैसे तो पुछदा नहीं है तुहानूं, अगर पुछ ले तो चलो पता होना चाहिए. सो साडे सुपर डायगोनल दे एलीमेंट किहड़े? 2 8 4. साडे सब डायगोनल दे एलीमेंट किहड़े? 1 2 2. सो वैसे अगर कोई मैट्रिक्स इदां दी होवे जिवें मैं शो कीती हुई है तुहानूं इत्थे, जस्ट मोमेंट, अगर मैं इहनूं 0 करदा दिस, सो देखो एक बैंड नहीं बन गया? ये बैंड, इहदे विच 3 ही डायगोनल आ. किहड़े किहड़े? उही प्रिंसिपल, सुपर ते सब. ते बैंड बन गया जिवें हत्थ 'च बैंड बन्निया हुंदा है ना. सो इहनूं बोलदे आ बैंड मैट्रिक्स. ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल दिंदे आ, पर बैंड मैट्रिक्स भी इहदा नाम हैगा एक. चलो अपनी डिस्कशन का हिस्सा नहीं, याद कर लियो, कई बार पुछ लैंदा, ध्यान च रख लियो. अगे आओ. उस तो बाद सानू कई बार हुण अपनी गल चलो डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स की है? कोई भी जो असीं मैट्रिक्स लिखते हैं, सपोज करो साढ़े को मैट्रिक्स है AAIJ, इहदा ऑर्डर सपोज करो 3 by 3 है. सो ये मैट्रिक्स में जो आप ट्रांसलेट करांगे एलीमेंट वाइज तो ये बन जाएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. So this is the principle. So this is the principal diagonal. सो अगर असी कह दीए भी किसी मैट्रिक्स के जोड़े बाकी एलीमेंट 0 कर दिए, सपोज करो भी आ भी 0 करता, आ भी 0, आ भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आ 0 हो गए. तो कि दो तरह के एलीमेंट से इन्हों की लोकेशन की सी A11 22 तो 33. जोड़े बाकी एलीमेंट से उन्होंने जो सबस्क्रिप्ट नंबर लिखे हुए आई तो J, ये अदर एलीमेंट्स में डिनोट करते सी, है ना. सो आप जे इदा करिए भी AI तो नॉन 0 है, तो जोड़े AIJ इक्वल टू 0, मतलब आई तो J है जोड़े वो नॉन 0 है, तो जो आई तो J इक्वल नहीं है वो 0 है. सो किदा दी मैट्रिक्स बन जूगी फिर 1 0 0 2 0 3 0 0 3. हुण तुसीं देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलीमेंट किहड़े सर्वाइव किए? ओनली डायगोनल एलीमेंट सर्वाइव किए आ वाले, ये वाले सर्वाइव किए, बाकी सारे 0 हो गए, है ना. सो अगर किसी मैट्रिक्स के विच सिर्फ प्रिंसीपल डायगोनल एलीमेंट दे होण तो उस मैट्रिक्स नूं की बोल दिंदे आ? डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिंदे आ. किहड़ी मैट्रिक्स बोल दिंदे आ? डायगोनल. हुण इसे नूं थोड़ा होर रिफाइन करते हैं. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ AII ਆ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ K ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ K 0 0. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ 3 by 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ 0 K 0 0 0 K. ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ K ਨੂੰ 1 ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਹ मैं तो टिक लगाऊंगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल हैगी है, बिल्कुल डायगोनल है.
सो ये स्केलर भी हैगी है, तो ये तुहाडी इत्थे मैं आइडेंटिटी तो हैगी है ना। सो ये तिन्ने क्वालिटीज़ हैगियां। जिहड़ी उपरली मैट्रिक्स हैगी है स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी नहीं हैगी ये। मान लो मैं इदां ही लगे सी ना 3 दे, सो आइडेंटिटी नहीं हैगी गी, ये स्केलर हैगी है। जो मान लो कि 2 2 3 3 लै लईए तो डायगनल हैगी है। तो स्केलर दे विच की हुंदे भी तिन्ने इक्वल होने चाहिए। ये ना तो आइडेंटिटी है ना ये स्केलर है, इट्स ओनली डायगनल। सो तुसीं मेरे एरो जे लाए देख लिओ, आर्टिकल लगाइयां होईयां जिहड़ियां, सो इनू ध्यान नाल देख लेना। कई वारी पुछ लैंदा दसो जी किहड़ी मैट्रिक्स है। अच्छा, उस तो बाद फिर एक होर जिहड़ी अपनी इंपॉर्टेंट, अच्छा एक गल दसो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहंदे आ? देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस करके कहंदे आ भी साडे कोल आइडेंटिटी एलीमेंट हुंदा। मैं सपोज करो मैं 5 नूं 1 2 3 नाल मल्टीप्लाई कीता, ਜਦੋਂ मैं 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 2 × 3 6 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੈ। ਜੇ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 2 ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 3 3 ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ 6। ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਦੋਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੋਸਟ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। बट जो नंबर सिस्टम तुसीं देख रहे हो, 2 भी एक नेम है, 3 भी एक नेम है। तो जो दोनों मल्टीप्लाई किया नवा नंबर क्रिएट हो गया, तो बोथ एलीमेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। बट अगर मैं 5 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करा तो उन्हें कुछ नहीं होएगा। 5 पहला भी 5 सी, हुण भी 5 है। सो 1 की है मल्टीप्लाईकेटिव आइडेंटिटी दे विच आ गया। इस तरह अगर किसी मैट्रिक्स नूं किसी होर मैट्रिक्स नाल अगर पॉसीबल है मल्टीप्लाईकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नवी मैट्रिक्स बन जाती है। पर जे कुछ इदां दा होवे भी एक मैट्रिक्स ए है, उहदे नाल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई नाल मल्टीप्लाई किया तो उही मैट्रिक्स ए ही रह गई, मतलब उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज की। तो दैन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो जी 1 0 1 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1 I3 है जी, तो उन्होंने की बोल दें आइडेंटिटी है भी। मल्टीप्लाईकेशन तो किसी को कुछ नहीं कहती। सो ये जी नोटेशन हैगी है दैट इज़ मान लो I1 आ, वो कोई एलीमेंट आ जाना, तो I2 1 0 0 1 एटसैट्रा, मतलब इदां दी होनी है। स्केलर मैट्रिक्स आप डिस्कस कर ली, डायगनल आप डिस्कस कर ली। चलो जी, उस तो बाद इसका नैक्सट टाइटल है इक्वैलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। भी 2 मैट्रिसेस कदों इक्वल होंदियां? तो जमा पंजाबी दे जट्टां दी गल करिए भी देखो भी इक्वल कदों होणगियां ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ A B C D, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ P Q R S। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਈ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ A ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ P ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ C ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ R, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। सो इत्थों की होया, सो A शुड बी इक्वल टू P, B शुड बी इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू R, D शुड इक्वल टू S। सो थोड़ा ये कई क्वेश्चन पुट कर लेंदा है सिंपल जी भी 2 मैट्रिक्स इक्वल है जी। अच्छा एक होर देखो, 2 ही गल्लां हो सकदियां। अगर कोई सपोज करो भी 2 मैट्रिक्स अलग अलग है ना, A प्लस B है ना, हो सकता डिफाइन होवे, डिफाइंड हो सकता A प्लस B नॉट डिफाइंड है ना। जो डिफाइन नहीं हैगा ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने ऑर्डर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर इज नॉट सेम जो वो डिफाइन नहीं हैगा। तो जेकर वो डिफाइन है तो फिर मतलब ऑर्डर सेम है, जो ऑर्डर A का उही ऑर्डर B का। तो जी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी सम करने तो बाद एक नवी मैट्रिक्स जी बनी है, वह ऑर्डर भी की होगा उही जो A तो B का। चलो जी, हुण असीं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करांगे, बड़े सौखे जे आ। इदां दी उन्हें सैंपल पेपर दे विच पुछे आ, ते होपफुली इदां दी ही क्वेश्चन तुहानूं फाइनल एग्जाम दे विच पुछूगा। सब तो पहला तो उन्हें पहला क्वेश्चन ही पूछा भी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो जी सीधी जी गल है, ऑर्डर लई तुहाडे कोल कितनियां रोज़ कितनियां हैगियां 2 है ना जी, R1 दिस इज R2 एंड कॉलम कितने 1 2 3 4, सो 4 कॉलम। सो ऑर्डर इज 2 × 4, सो 2 इज वेयर इज 2 × 4, पहली ऑप्शन ही आ गई। नैक्सट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलीमेंट तुहानूं क्या सी काउंट करन, पहला तो ऑर्डर सी, ऑर्डर सी 1 2 3 1 2 3, सो 3 × 3 तो टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो 9, दैट्स डन। अच्छा उस तो बाद बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्सपैक्टेड है इदां दा क्वेश्चन तुहानूं आना।
इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स दैन वट आर द पॉसीबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सो देखो जो कोई भी मैट्रिक्स लैने ਉਹਦਾ ऑर्डर कितना ਹੁੰਦਾ m इंटू n, मतलब रो इंटू कॉलम है ना। सो आप दो दे विच ही नंबर डिवाइड करते हैं, मतलब दो हिस्सों च ਉਹਨੂੰ डिवाइड करना है ना। हुण मान लो 18 है, 18 के किहड़े फैक्टर हो सकते हैं, दो रो इंटू कॉलम बनाने हैं ना, 1 इंटू 18 भी एक रो ले लो, 18 कॉलम च ले लो, होर इहदा उल्ट कर लो ना, एक कॉलम मैट्रिक्स बन जानी है। अच्छा फिर होर की हो सकता है, 2 इंटू 9 होर 9 इंटू 2 होर 3 इंटू 6 6 इंटू 3 होर 4 नाल तो वह फैक्टर नहीं बनता ना, 5 नाल बनता, 6 नाल बनना, फिर उल्ट शुरू हो गए। सो ये अपने सारे एलीमेंट कि कवर हो गए, आ ये हो गया दिस 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 दिस। सो आवर आंसर इज डी। कई बार पूछ सकता भी किन्नियां, ये तो चलो हो गया ना भी किहड़ियां, तो एक होर क्वेश्चन इदा भी पूछ सकता भी किन्नियां। सो किन्नियां सीगियां, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। सो तुहानूं ये भी पेपर च आ सकता भी किन्नियां मैट्रिक्स बनाई जा सकदियां। सो 6 मैट्रिक्स बनाई जा सकदियां। पर जे तुहाडा ऑर्डर नंबर ऑफ एलीमेंट्स ही प्राइम हो, मान लो मैं कहां भी 7 है जी, 7 इज ए प्राइम नंबर है ना। सो हुण तुसीं इन्हां नूं इहदे मल्टीप्लाई की इहदे फैक्टर किन्ने बन गए, 1 इंटू 7। सो 7 इंटू 1। तो जो अगर प्राइम नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो किसी मैट्रिक्स के है ना, मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट्स प्राइम है, तो वो दो ही बन गई, रो तो कॉलम है ना। सो किहड़ियां दिस वन। उस तो बाद फिर मैं तुहानूं कहा सी भी एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन नाल रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर लैंदा। सो उन्हें 2x2 की कहे तो तुहाडी 2x2 की मैट्रिक्स किहड़ी होगी, A11 A12 A21 22। सो आप एलीमेंट फाइंड आउट कर लिए, वट इज A1, तुहानूं फार्मूला दिता हुआ 1 + 1 square by 2 means 2 square by 2 4/2 2। what about A12, क्योंकि वो आई तो जे सेम ही है तो A21 इन्हें सेम ही होना, 1 + 2 square by 2 3 9/2। so what about A22, so 2 + 2 square by 2 2 ਤੇ 2 4 16/2 8। सो साडी मैट्रिक्स की होनी चाहिए है 2 9/2 9/2 8। देखो जी कितने पई है फिर 2 8 दिस वन। सो आवर आंसर इज सी। नैक्सट क्वेश्चन, रो मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है, इदां दी हुंदी है। सो दिस इज द रो मैट्रिक्स, तो ये किहड़ी है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। आ किहड़ी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो आ किहड़ी है, आइडेंटिटी नहीं हैगी, क्योंकि प्रिंसीपल डायगोनल कंडीशन सैटिस्फाई करते, भुलेखा पाने वास्ते मैट्रिक्स अक्सर ही पूछ लैंदा। सो ये कोई कोई खास गल है भी ये स्केयर है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना 3/3 है। सो फस्ट ऑप्शन साडी जिहड़ी रिक्वायर्ड सी रो, सैकंड दे विच कॉलम सी, तीजे विच आइडेंटिटी सी, चौथे नूं अगर आइडेंटिफाई करना हो तो स्केयर मैट्रिक्स। उस तो बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, डायगोनल एलीमेंट पूछ रहा है, एलीमेंट ऑर्डर कितना 4 4 है। सो डायगोनल एलीमेंट तुहानूं दस्सिया सी A11 A22 A33, तो क्योंकि 4 तक ऑर्डर 4 4 होणगे, किहड़े होणगे, फार्मूला दिता होया 2 × 1 - 1 2 - 1 = 1, फिर 2 × 2 - 2 4 - 2 2, फिर 2 × 3 -3 6 -3 3 2 × 4 - 4 8 -4 = 4। सो डायगोनल एलीमेंट 1 2 3 4। सो अब साडा आंसर ये आ गया। हुण उसकी एंटर कर रहे हैं मैट्रिसेस दे विच जिन्हां दा इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिसेस लाउणी है, असीं उहदे बेस ते क्वेश्चन करने हैं। सो देखो दोवां दा ऑर्डर 2/2 है, कोई दिक्कत नहीं। सो आपां कोरसपोंडिंग एलीमेंट कोरसपोंडिंग नाल इक्वल करने हुंदे आ। सो 4 = y, 3 = z, मीनस y की वैल्यू 4 है तो z की वैल्यू 3 है। सो x की वैल्यू कंपेयर किया वो 1 है। सो साडियां वैल्यूज की आई 1 4 3 1 4 3 कितने पई 1 4 3 इस ऑप्शन च पई। चलो जी निबड़ गया काम। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, फिर वही 2/2 दियां सेम है, x + y = 6, 2 तो 2 के इक्वल ही होंगे, 5 + z = 5। सो इसका मतलब की है भी z तो 0 हो गया। चलो z 0 हो गया तो दो ऑप्शन तो उड़ गई, दो ही ऑप्शन रह गई। फिर x y = 8, मतलब उन्होंने दोवां का प्रोडक्ट है जी वो कितनी होनी चाहिए है, x तो y की 8 होनी चाहिए है।
सो इत्थे तो 4 बनती पई सी, आ ऑप्शन भी उड़ गई। सो इक्को ही ऑप्शन सर्वाइव की। एक्स की वैल्यू 2, दोवां दा सम भी 6 है, प्रोडक्ट भी 8 है, दिस वन। चलो जी नैक्सट ते आओ। सो इत्थे देखो दो तरह नाल कर लो, क्लासिकल वे नाल करना क्लासिकल कर लो, नहीं तो देखो तिन्नां दा सम 9 होना चाहिए। सो 10 तो 2 + 3 इंटू इहदा 9 हैगा। आ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गई क्योंकि इन्हां दा सम 10 हो गया। 4 2 6 3 9 तो आ ठीक है ना। 3 ऑप्शन अपने एलिमिनेशन मैथड सर्वाइव कर दी है। तो वाई प्लस जैड का जोड़ा सम आ वो कितना होना चाहिए 7, वाई प्लस जैड का 7। सो आ वाई तो जैड 2 + 3 आ भी वो डिस्कार्ड होगी। सो साढ़े को अपनी किहड़ियां सर्वाइव कर रही हैं, फस्ट तो लास्ट। सो एक्स प्लस जैड का सम 5 होना चाहिए। सो एक्स प्लस जैड का सम ये 5 नहीं है। सो ए सो लास्ट ऑप्शन सर्वाइव कर गई। अदरवाइज तुम इदा भी कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जैड = 9। तो ये देखो भी एक्स प्लस जैड की वैल्यू जी दी हुई है 5 प्लस वाई जड़ा है तुहाडे कोल इत्थे वैल्यू फिल कर दो 9 - 5 = 4। इस तरह तुम जिवें करते हो स्टैंडर्ड तरीका है वो कर सकते हो। सो उस तो बाद जी स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स की होंगे है रोज़ = कॉलम सिद्धम सिद्धा। सो दिस विल बी योर आंसर। उस तो बाद इदा का आ भी थोड़ी NCERT के क्वेश्चन है। सो इतने देखो जो तुम इक्वैलिटीज करोगे 3x + 7 = 0। सो 5 = y - 2। सो इतों y की वैल्यू कितनी आ गई y की वैल्यू 7। सो y की वैल्यू 7 आ तो आ ऑप्शन तो उड़ गई है ना। सो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए है -7/3। ये एक ऑप्शन हो गई है ना। एक होर था एक x पाया सीगा 2 एलीमेंट्स 2 - 3x = 4। सो ये अकॉर्डिंगली 3x = -2, x की वैल्यू -2/3। सो कभी भी x दी दो वैल्यूज नहीं आ सकती। सो दो अलग अलग हैं। सो इसका आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आ टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट से दिता हुआ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑल पॉसीबल मैट्रिसेस ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 1। कई बार ऑर्डर भी इतने चेंज करके दे सकता, एलीमेंट भी बदल सकता है। तो इन्हू समझ ਲਈ ना एक थोड़ा जहा प्रिंसीपल है, याद कर लो द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसीपल। सो की है द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसीपल। हाँ जी एक ही है, इफ देर आर p ways to do one thing, and q ways to do another thing, then there are p cross ways, p into q ways to do both things। हाँ जी। सो हुण इहदे विच मैं क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा, सॉल्व इत्थे करूँगा। सो सब तो पहला तो उन्हें तुहानूं मैट्रिक्स ऑर्डर की है 3 × 3। सो 3 × 3 का मतलब की है भी असी 9 लोकेशनस 9 प्लेसिस फिलअप करनी है। कितनी प्लेसिस फिलअप करनी है 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हरेक पोजीशन ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ दो वेज ने। मैं क्वेश्चन नंबर 13 की गल कर रहा किहड़े 0 और 1। 0 और 1 ਇਹਦਾ मतलब भी पहली फस्ट पोजीशन जी मेरे को सपोज करो भी आ वाली है, इनू फिल कर लिए मेरे को किन्ने वेज ने 2 है। फिर नैक्सट प्लेस में 2 है इदा करके 9 प्लेसिस फिल करने वास्ते मेरे को किन्ने वेज है। फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग कहना 2⁻⁹ विच इज इक्वल टू 512 512। हुण इस क्वेश्चन थोड़ा होर बदल देंगे है ना। हुण ये नवे क्वेश्चन भी 2 × 3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब मैं कितनी पोजीशन फिल करनी है। हुण मैं करनी है 1 2 3 1 2 3। सो मैं 6 पोजीशन फिल करनी है 1 2 3 4 5 6।
तो हुण मेरे को एलीमेंट की चॉइस की जी मर्जी हो तो एवं भुलेखा पाउण नूं -1 ते 1 इत्थे जी चॉइस है -1 एंड 1 सो कितनी चॉइसिस है 2 2 2 सो 6 प्लेसिस फिल करनियां सी योर आंसर इज 2 raised to power 6 सो 4 into 4 into 4 64 अच्छा हुण देखो होर आ गया अगे क्वेश्चन इस तरह नाल हुण तुसीं कितनी पोजीशन फिल करनी है 2 into 2 1 1 1 1 सो असीं 4 पोजीशन फिल करनी है तो हरेक पोजीशन लई साडे कोल कितनी चॉइसिस ने 3 चॉइसिस ने 0 और 1 और 2 सो कितनी चॉइसिस ने 3 3 3 3 प्रिंसीपल फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग की कहता भी इन्होंने मल्टीप्लाई कर दो 3 raised to power 4 so 9 into 9 81 so this is your answer next question there so उस तो बाद आ मैट्रिक्स दसो भी डायगोनल मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स दे विच जे असीं गल करिए तो आ हुंदा साडा प्रिंसीपल डायगोनल इदों बिना बाकी सारा कुछ जीरो होना चाहिए पर नहीं बई इहदे विच तां होर हैगे एलीमेंट ये नहीं हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे विच कल्ले डायगोनल एंट्रीज 1 1 होनी चाहिए बाकी जीरो होने चाहिए ये भी नहीं है स्केलर की होंदी है स्केलर दे विच सारी इक्वल होनी चाहिए ये भी नहीं है सो किहड़ी ऑप्शन सर्वाइव कर गई जस्ट 3 into 3 स्केल मैट्रिक्स नैक्सट क्वेश्चन जी a plus b इज डिफाइंड एंड इक्वल टू मैट्रिक्स b a plus b इज इक्वल टू c जो मैं कहता भी ये डिफाइंड है यदा मतलब सामी का किया जा सकता है तो जेकर C का आउटपुट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो यदा मतलब की है भी इन्हों के ऑर्डर भी किन्ने किन्ने है 2 into 3 है इदा पेपर च क्वेश्चन पूछा है सो इसका ऑर्डर कितना हो गया चाहे ए का पुछ लैंदा चाहे बी का पुछ लैंदा आंसर सेम ही होना सीगा उस तो बाद है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सपोज करो तुहाडे कोल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो आ तुहाडा प्रिंसीपल डायगोनल है ये उपर वाली जेकर मैं एंट्रीज 0 करदा 0 0 सो कि एलीमेंट्रीज नीचे नीचे बन गई मैट्रिक्स मैट्रिक्स जी बनी है वो इत्थे बनी है आह वाली दिस वन लोअर एंड ते ट्रायंगल बनी है सो 0 किहड़ियां ए 1 2 0 है ए 1 3 इज इक्वल टू 0 है और ए 2 3 इज इक्वल टू 0 है तो ये वेखो लोअर ट्रायंगल में 0 किहड़ियां हो रही जो एक ए आई ते जे होंदा ना सो जो जे वाला पोर्शन है इत्थे आई वाला पोर्शन छोटा तो जे वाला पोर्शन जो वड्डा है तो ये सारिया ए एलीमेंट उनकी लोकेशन वाइज 0 हो रही हैं सो साडा रिजल्ट की बन गया सो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स दे विच की बनूगी दिस वन तो अपर ट्रायंगल च की हुंदा उहदे च उल्ट हुंदा अपर ट्रायंगल च किहड़ियां इदां दा बना लांगे आपां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो तुहाडा इदां बना लेने डायगोनल just a moment हुण तुसीं देखो हुण इह कौन 0 है ए 2 1 0 इक्वल है ए 3 1 0 है ए 3 2 0 है सो इत्थे आई वाला पोर्शन जी तो वड्डा है सो ऊपर ट्रायंगल बन गई सी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई सो योर आंसर इज दिस वन सो तुहानूं ये पुछ लैंदा है ना उस तो बाद डायगोनल मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन ऑलरेडी करके आए हैं भी कल डायगोनल एलीमेंट सर्वाइव करते होंगे बाकी वो एलीमेंट सारे की 0 होंगे सो बेटा ये सी तुहाडा अज दा लैक्चर जिहदे विच असीं 3.1 नूं डिस्कस किया नैक्सट लैक्चर दे विच असीं नैक्सट एक्सरसाइज डिस्कस करांगे तो एक्सप्लोर करांगे भी उहदे विचों किहड़े पॉसिबल MCQ एग्जामिनर पुछ सकदा है थैंक यू बेटा थैंक्स फॉर वाचिंग